زمین کے نمک ہو. اور ہماری مرکزی آیت ہے تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. ربنا یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر فرمائے کہ تم زمین کے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تشریح کریں اور اس کو بڑے آسان طریقے سے سیکھیں، بائبل مقدس کے حوالہ جات کے ساتھ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا تم دنیا کے نور ہو. جب ساتھ لیے پہلے خداوند یسوع نے کہا تم زمین کے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تم دنیا کے، تم دنیا کے. ہاللویا. خداوند یسوع نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور دوسرا لفظ خداوند یسوع مسیح نے اگلی آیت کے اندر کہا تم دنیا کے نور ہو، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور. رب العالمین سے دنیا کا نور. خداوند یسوع نے فرمایا زمین کا نور. کہا دنیا کا نور میں ہوں اور تم دنیا کے نور ہو، لیکن میں زمین کا نمک نہیں ہوں، تم زمین کے نمک ہو. میں نور ہوں اور میں بتایا انوار ہوں، میرے اندر سے نور نکلتا ہے. میں زمین کا نہیں، میں تو آسمان کا ہوں. میرے ریفلیکشن سے، میرے اثر سے تمہاری زندگیاں منور ہوتی ہے. تم زمین کے نمک ہو سکتے ہو، لیکن میں زمین کا نمک نہیں ہوں. تم زمین کے نمک ہو، میں زمین کا نمک نہیں. میں دنیا کا نور اور پھر تم دنیا کے نور ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے اپنی بات کرتا ہے، پہلے اپنی ذات کی بات کرتا ہے، پھر اس کا امپلیمنٹ، پھر اس کا اثر، پھر اس کا اطلاق اپنے ماننے والوں پر کرتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے نمک کی، تب وہ یہ نہیں کہتا کہ میں زمین کا نمک ہوں. جب باری آتی ہے نمک کی، تب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین کا نمک ہوں، تب اس نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. تم زمین کے نمک ہو، کیونکہ میں تو زمین کا ہے ہی نہیں، میں تو آسمان سے آیا ہوں اور آسمان پر ہی جاتا ہوں. ابن آدم اوپر سے آیا ہے اور اوپر ہی جاتا ہے. تم زمین سے ہو، زمین میں جاؤ گے. تم زمین سے ہو، مٹی سے تم لیے گئے ہو جس کے اندر نمک ہوتا ہے. ذرا توجہ سے بات کو سمجھے، اگر بھید کو سمجھنا ہے. تم زمین کے نمک ہو اور تم لیے کہاں سے گئے؟ خدا نے آدم کو کس سے بنایا؟ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا. اور نمک کہاں ہے؟ زمین کے اندر نمک پایا جاتا ہے. زمین کے اندر نمک ہے، اور خدا نے آدم کو نمک یعنی مٹی سے دیا ہے، اور مٹی کے نیچے نمک ہے، اندر نمک پایا جاتا ہے. اور خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. تب آدم میرے ساتھ رہیے، تب آدم جیتی جان ہوا. اور آج اگر انسان کا پسینہ بہنا شروع ہو جائے تو انسان کے پسینے، اگر آپ یا گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، آپ دیکھیے کہ انسان کا جو پسینہ ہے، اس کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جب یہ ہمارے چہرے سے یوں کر کے نیچے گرتا ہے، ہماری زبان پر لگتا ہے، تو اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ نمکیات سے بھرا ہوا ہے. منرل انسان کے اندر پایا جاتا ہے، انسان کے اندر نمک پایا جاتا ہے، اور یہ نمک انسان کے پسینے کے ذریعے سے باہر آتا ہے. اور جب زیادہ پسینہ بہہ جائے، جب زیادہ انسان کا پسینہ بہہ جائے تو کہتے ہیں ایگزاسٹ ہو گیا ہے، انسان تھک گیا ہے اور یہ کمزور اور کمزوری کی جانب جا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں نمکیات کی کمی ہو گئی ہے. سنا یہ لفظ؟ سنا یہ لفظ کہ اس میں نمکیات کی کمی ہو گئی ہے. اب نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈرپس لگائی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے انسان کے اندر
اس سے پورا کیا جائے. اور اگر انسان کا پسینہ بہت سے بہ جائے اور نمکیات انسان کے اندر سے زائل ہو جائے تو انسان کا بلڈ پریشر ایک دم جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے اسے نمک دو تاکہ بلڈ پریشر اس کا نارمل ہو جائے. اور اگر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو انسان کومے میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو نمک ہماری زندگی کا ایک عنصر ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے کس کے نام کو؟ زمین کے نام کو. کیونکہ زمین کے اوپر سے تمہیں لیا گیا ہے اور تمہارے بدن کے اندر نمکیات ہے, تمہارے بدن کے اندر نمک کی تاثیر رکھی ہوئی ہے. اور کتاب مقدس کا فرمان سن لیجیے, خدا نے جب یہ سب کچھ کہہ دیا کہ تم زمین کے نمک ہو, اس کا مطلب یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ جس دن خدا نے کلام کیا ابراہیم کے ساتھ, خدا نے کلام کیا لوط کے ساتھ, تو خدا نے کہا کہ ایسا کرنا کہ جب آسمان سے آگ اور گندک نازل ہوئی تو خدا نے کہا کہ پیچھے مڑ کر. لوط کی بیوی نے کیا کیا؟ تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ نم کا ستون بن گئی. اور آج بھی اس کی یاد تمام صحائف کے اندر ہے کہ وہ نم کا ستون بن گئی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر نم کی تاریخ قدیم پرانی ہے. نم کے انسان کے بدن کے اندر ہے اور یہ بدن خدا کے لیے قربان کیا جاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, ہم خدا کے حضور قربانی گزرا رہے ہیں. اور پھر بائبل مقدس میں خداوند تعالیٰ کی ذات کبریا نے خوبصورت انداز سے بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ جب تم نے کیا کرنا ہے, جب تم نے میرے حضور میں آنا ہے تو احبار کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے, اور تو اپنی نظر کی قربانی کی ہر چڑھاوے کو نمکین بنا. تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نم کے بغیر نہ رہنے دینا. اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا. خدا نے کہا کہ جب تم چندہ دو تو نمک کا چندہ بھی مجھے دینا ہے. کس کا چندہ دینا ہے؟ پھیکی قربانی کوئی نہیں چڑھانی. ساری قربانیاں تمہاری کیا ہو؟ نمکین. ہر تمہاری قربانی نمک سے نمکین کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار کاہن جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے پہلے قربانی کو نمکین کرتا تھا, تب جا کے وہ خدا کے مذبح پر چڑھائی جاتی تھی, تب جا کے کہیں وہ خدا کے گھر کے اندر رکھی جاتی تھی. اور بائبل مقدس میں گنتی کی کتاب 18 باب کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے, جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے, ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے اور بیٹوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا. یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہو. نمک کا دائمی عہد ہو. کس کا عہد ہو؟ نمک کا. نمک کا دائمی عہد ہو. یہ عہد کتنی دیر کا ہو؟ ہمیشہ ایٹرنل کوننٹ ہے. اور یہ عہد دائمی عہد ہے. نمک کا عہد دائمی عہد ہے. اور آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں, عزرا کی کتاب 4 باب میں سے میں آپ کے لیے بیان کرنے کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے جب یہودیوں کی مخالفت کی گئی اور ارتحشستہ بادشاہ اور باقی جو فارس کے بادشاہ ہیں ان کے حضور جب یہودیوں کے اندر جو نفاق تھا, ایک گروپ اس کے سامنے گیا اور کہتا ہے بادشاہ اسرائیل کے اندر بغاوت ہونے والی ہے, ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تیرا ہم نے نمک کھایا ہے اور ہم نمک کا حق ادا کرنے آئے ہیں. نمک حلالی کرنے آئے ہیں. تیرا ہم نے نمک لیا ہے اور یہ نمک جو ہے یہ ایک کمٹمنٹ ہے, یہ عہد ہے اور ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں. تیرا نمک ہم نے کھایا, ہم نمک حرام نہیں ہوں گے, ہم نمک حلال ہوں گے. تیرے گھر سے, تیرے دستر
से हमने रोटी खाई है और हम नमक हराम नहीं हो सकते। खुदा ने कहा कि तुमने अपनी कुर्बानियों के अंदर नमक रखना, कुर्बानियों के नमक के साथ तुमने वैसे नमक मेरे हुजूर लेकर आना है। इस्राएली कहते हैं कि हमने तेरा नमक खाया है और हम इससे इन हराम नहीं खा सकते, हम हराम साधन नहीं मान सकते, हमने नमक खाया है। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी तवारीख की किताब 13वें बाब की 5वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दे दी। खुदा अहद करता है दाऊद के साथ, खुदा ने अब्राहम के साथ अहद किया। और खुदा अहद कैसे करता है? एक मतलब जब खुदा ने अब्राहम के साथ अहद किया तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने नातेदारों में से निकला और मैं तुझे एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती होगी, तेरी नस्ल को वहां का वारिस बनाऊंगा। और किताब मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने उससे कहा मैं तेरे साथ अहद करूंगा। खुदा ने मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा कि एक बकरा ले, बैल ले और उसको 2 टुकड़े कर, कबूतर को, बच्चे को, जानवरों को, परिंदों को 2 टुकड़े सेंटर से कर और सेंटर से 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े को दाएं रख और दूसरे टुकड़े को बाएं रख। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसने जानवरों के 2 सेंटर से टुकड़े किए, एक टुकड़े को दाएं रखा, एक टुकड़े को बाएं रखा। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब ये हो गया तो जंगली परिंदे आए और परिंदों ने आकर उस गोश्त को नोचने की कोशिश की। अब्राहम 99 वर्ष का है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो भागकर परिंदों को यहाँ उड़ाने जाता तो परिंदे दूसरी जानिब चले जाते, वो भागकर यहाँ आता तो परिंदे उठकर इस जानिब आ जाते। अब्राहम इसी तरह बड़ी देर तक करता रहा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता और आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलना शुरू हो गया। जैसे सूरज ढलना शुरू हो गया तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अब्राहम पर गहरी नींद का गलबा आ गया। उधर तारीकी छा रही है, इधर अब्राहम पर गलबा नींद आ रहा है। और किताब मुकद्दस में लिखा है, वो थोड़ी देर के बाद जहां पर था वहीं पर लेटा और सो गया। जैसे वो लेटता है तो थोड़ी देर के बाद एक बड़ी आग आती है और वो आग उन दोनों टुकड़ों के दरमियान में से गुजरती है और गुजरते गुजरते आग के अंदर से आवाज आती है, अब्राहम अब्राहम अब्राहम, मैं तेरे साथ अहद करता हूं कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे प्रोमोट करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और ये मेरा अहद तेरे और तेरी नस्ल के साथ है, क्योंकि मैंने दरमियानी खून रखा है। और अगर कोई अहद को तोड़े तो ऐसे जैसे बकरे के 2 टुकड़े हुए हैं ऐसे वो हो जाए। और ये अहद मैं अपना था और ये अहद मैं कर रहा हूं। खुदा ने अब्राहम से अहद किया और यहां पर लिखा है कि खुदा ने दाऊद के साथ अहद किया। जब यहूदी अहद करते तो यहूदी एक बर्रे को लेते, एक बछड़े को लेते, उसे सेंटर से चीरते, सेंटर से जबा नहीं करते, सेंटर से 2 टुकड़े हो जाता। एक टुकड़ा एक शख्स यहां जो था दाएं वो पकड़ता, क्योंकि सेंटर से टुकड़े हुआ है, और वो अपने टुकड़े को पकड़कर यूं चलना शुरू हो जाता। जो दूसरी जानिब था बाई जानिब वाला शख्स दूसरे टुकड़े को पकड़ता और वो यूं चलना शुरू हो जाता और खून रास्ते में बहना शुरू हो जाता। जब वो रास्ते को क्रॉस कर रहे होते तो अपनी जुबान से कह रहे होते, जब सुनिए, वो टुकड़े को पकड़ते और एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं और अपनी जुबान से कह रहे हैं कि अगर मैं इस अहद को तोड़ूं तो खुदा मुझे ऐसे बर्बाद और टुकड़े 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 कर दे। ये है अहद। खुदा ने खुद 2 जानवरों को काट कर उसके अंदर से गुजर कर कहा, मैं तेरे साथ अहद बांधता हूं। यहूदी जब अहद बांधते तो इस तरह बांधते। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दाऊद के साथ नमक का अहद बांधा। किसका? मेरे साथ रही है। खुदा ने किसका अहद बांधा? खुदा ने नमक का अहद दाऊद के साथ बांधा। और ये दूसरे तवारीख की किताब के 13वें बाब की 5वीं
इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा दे दी और कहा दाऊद के घर से कभी चिराग बुझाया न जाएगा। दाऊद को खुदा ने सल्तनत दी और बेनाज़र दाऊद को बल्कि उसकी नस्ल को सल्तनत दी। अहद किससे किया? किसके साथ अहद बांधा? नहीं, दाऊद के साथ बांधा। दरमियान में अहद में दरमियानी कौन था? किस चीज से अहद बांधा? किस चीज से अहद बांधा? बुलंद आवाज से किस चीज से अहद बांधा? नमक से खुदा ने अहद बांधा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नमक का अहद खुदा ने कहा कितनी देर कायम रहेगा? सब बुलंद आवाज से कितनी देर कायम रहेगा? दायमी। और ये यहूदियों नस्ल दर नस्ल दर नस्ल तुम्हारे अंदर ये अहद रहेगा। मैंने नमक से अहद बांध दिया है। और बाइबल मुकद्दस का फरमान और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के नमक का पहला काम क्या है? ना मेरे साथ रहिए। नमक का पहला काम खुदा ने कहा जितनी कुर्बानियां चढ़ाई जाए उसको नमकीन किया जाए। कुर्बानियों को क्या किया जाए? मेरे साथ रहिए बुलंद आवाज से। जो कुर्बानियां हैकल के अंदर खुदा के मज़बा पर चढ़ाई जाए वो नमक से क्या की जाए? नमकीन की जाए। दूसरा खुदा ने एक बात जो की, खुदा ने कहा कि अब जो तूने नजर चढ़ानी है खुदा के हुजूर लेकर हदिया आने हैं, उन हदियों में एक हदिया किसका हो? मेरे साथ ये किसका हो? नमक का हदिया मेरे हुजूर में तूने लेकर आना है। और तीसरी बात कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दाऊद से किसका अहद बांधा? किसके साथ अहद बांधा? नमक के साथ, दाऊद के साथ खुदा ने अहद बांधा। और चौथी बात खुदा ने कहा कि ये अहद कब तक है? मेरे साथ ये अहद कब तक है? ये अहद दायमी अहद है। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, लगाओ से सुनिए। जब यरू के अंदर पानी कड़वा हुआ तो किताब मुकद्दस में लिखा है बुजुर्ग एलिया आसमान पर उठाया गया और बुजुर्ग यशवा जो है यरदन के पार से आ रहा है और रास्ते में लोगों ने घेर लिया और कहा कि पानी कड़वा हो गया है। तो मुकद्दस अलीशा ने क्या कहा? एक नया प्याला लाओ और उस प्याले में क्या डालो? उसमें नमक डालो। और वो पानी लेकर बुजुर्ग अलीशा ने क्या किया? जब बुलंद से बुजुर्ग अलीशा ने उस पानी के साथ क्या किया? वो पानी कड़वा था, वो पानी खराब था, वो पानी ठीक नहीं था। बुजुर्ग अलीशा ने पानी को लिया और पानी को लेकर उसी वक्त पानी के अंदर डाल दिया। और जैसे वो नमकीन पानी कड़वे पानी के अंदर डाला गया तो खुदा की कुदरत का करिश्मा देखिए, वो कड़वा पानी सर मीठा हो गया और आज तक मीठा है। इसलिए डाला क्या गया? डाला क्या गया? नमक डाला गया। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के तुम जमीन के। ये पिछले दिनों में बड़े बड़े हादसे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। कभी हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई, कभी हमारे चर्चिस को जलाया गया, हमारी बाइबल मुकद्दस को नजर-ए-आतश किया गया, हमारे घरों को जलाया गया, मसीही नौजवानों को शहीद किया गया। तो क्या मसीही सारे पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गए? हम तो ये कहते हैं हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये पारा है इंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। और हम ये कहते हैं कि अगर हमारी गर्दन हमारे तन से जुदा कर दो तो हमारी गर्दन दूसरी तरफ पड़ी हुई ये कह रही होगी मेरा जीना यीशु, मेरा मरना यीशु। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई गोली, कोई बम अगर हमारे घर जला दे तो हम मसीही अपने ईमान को छोड़ देंगे? बाइबल जला दे तो हम ईमान को छोड़ देंगे?
नमक से नमक से नमकीन की जाए, कुर्बानियां नमकीन की जाए। क्या आज जितनी कुर्बानियां चढ़ाई गई हैं, चाहे वो किसी किस्म की कुर्बानी क्यों ना हो, पुराने अहदनामा में खुदा ने तकरीबन 7 और इससे ज्यादा कुर्बानियों का तकाजा किया। और मसीहियों सुन लो, यहूदी हर रोज किसी न किसी तौर पर कभी खता की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, कभी सोखरी कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, कभी गुनाहों के कफारे की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, कभी शुक्रगुजारी की कुर्बानी, कभी नजर की कुर्बानी, कभी आतशी कुर्बानी, हर तरह से वो कुर्बानियां चढ़ाते हैं। मसीहियों, यीशु मसीह नासरी जो खुदा का बेटा है, वो इन तमाम कुर्बानियों के लिए खुद कुर्बान हो गया। हालेलुया। वो इन तमाम कुर्बानियों के लिए खुद कुर्बान हो गया, ताकि हम जो इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं आइंदा न कर सके। हम हर रोज कभी मेंढे की, बर्रे की, बछिया की, कबूतर की, कुमरी की किसी न किसी तौर पर कुर्बानी चढ़ानी है। खुदा की कुर्बानी चढ़ाई, खता की कुर्बानी चढ़ाई, शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाई, तरह तरह से कुर्बानियां चढ़ाई जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, हमारी खलासी फानी चीजों यानी सोना चांदी से नहीं हुई, मैं सारी कुर्बानियों को मसीह यीशु में पूरा कर दिया है। बर्रों की, बछड़ों की, मेंढों की तमाम कुर्बानियां, तमाम चीजों को यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जामिया तौर पर, मुकम्मल तौर पर उनकी तकमील कर दी है। और अब हमें कुर्बानियों की जरूरत है कि नहीं? लेकिन पौलुस रसूल एक नई बात बता देता है। पौलुस रसूल एक नए भेद को, नए फलसफे को हमारे सामने रख देता है। और वो भेद ये है, पौलुस रसूल ये कहता है कि अब तुम खुदा की कुर्बानी तुम हो, तुमने अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करना है। अब हमने मसीह के लिए कुर्बानी देनी है। हमारे लिए मसीह ने कुर्बानी दी। हम बर्रों, बछड़ों, मेंढों के खून को खुदा के हुजूर लेकर जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने खून से हमारी खलासी करवाई। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसका पसीना गोया क्या टकराना, उसका पसीना। शुरू में मैंने मेडिकली एक बात कही कि इंसान का अगर पसीना बह जाए सारा तो डेथ हो सकती है या नहीं? डॉक्टर साहब आप यहाँ है, डेथ हो सकती है कि नहीं? और आज हार्ट अटैक जो ज्यादा होते हैं ना, तो बंदा कहता है जब वो उसे पकड़ते तो देख के पसीना बहुत ज्यादा है। ऐसे ही होता है। हार्ट अटैक भी आज बहुत से लोगों को जो हो रहे हैं और उन्हें पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है। क्या हुआ जी? शिवरिंग शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक हो गया, पसीना आ गया, ओवर जो अजीब मिनरल्स है वो खर्च हो गए, बीमारियां लग जाती है, बीपी डाउन, कौमे में चले जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह का पसीना, यीशु मसीह का पसीना, यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बूंदे बन के टपक रहा है। गोया यीशु मसीह ने अपने खून की कुर्बानी खुदा के मज़बा पर चढ़ाई। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, तो भी इंसानों के इंसानों के मुशाबे हो गया। और मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और यीशु मसीह को नमक नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से नहीं लिया गया, वो न खून से, न गोश्त से, न जिस्म की गाय से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममलूक होकर हमारे दरमियान वो ऊपर से आया, रूह मुजस्सम हुआ। वो मिट्टी से नहीं लिया गया, वो मिट्टी की पैदाइश नहीं है, लेकिन मिट्टी की पैदाइश वालों के मुशाबा। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। आगे लिखा है, उसने खुदा की खुदाबंदी को अपने कब्जा में रखने की चीज और अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उसने अपना खून पसीने की तरह बहा दिया। मिनरल
خدا کی حضور پیش کر رہا ہے. ہر قربانی نمکین کی جائے, ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے تاکہ وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے. اس نے اپنا پسینہ بہا کے خدا کے حضور نم کے طور پر اسے پیش کیا کہ خداوند یہ میری قربانی ہے, کیونکہ تو نے حکم دیا تھا کہ تمام قربانیاں نمکین کر کے میرے مصباح کے سامنے پیش کی جائے. اس کا مطلب ہے مسیح کے لیے کام کرنا, اور صرف یہ نہیں بلکہ بدن کی قربانی. یسوع مسیح کہتا ہے جان میرے تک کب تک وفادار ہے؟ جب بلند آواز سے کب تک وفادار ہے؟ جان دینے تک. جان دینے تک وفادار ہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. لیکن کب دوں گا؟ تو نے جان دینے تک وفادار رہنا ہے. اور بائبل مقدس میں شریعت کی کتاب میں لکھا ہے تو نے جانور کا خون اس کے ساتھ نہیں کھانا, کیونکہ بھٹی صاحب بھائی صاحب جانور کے خون کے اندر کیا ہے؟ جانور کی جان کس کے اندر ہے؟ جب بلند آواز سے جانور کی جان کس کے اندر ہے؟ خون کے اندر اس کی جان ہے. اور تو نے خون کے ساتھ جانور کو نہیں کھانا. یسوع نے کہا کب تک وفادار ہے؟ تو اب سادہ لفظوں میں ہماری جان کس میں ہے؟ ہماری جان کس میں ہے؟ ہماری جان کس میں ہے؟ ہمارے خون میں ہماری جان ہے. اور بدنوں کی اگر قربانی مانگتا ہے تو پسینے کا خون بھی منگتا ہے. یہ قربانی دے پھر اسے. تم زمین کے نمک ہو, چڑھاؤ قربانی ایسی, پسینے کی قربانی اور خون کی قربانی. یسوع مسیح نے جب قربانی چڑھائی نمکین کر کے پسینہ اور خون دونوں دیا. اور یسوع مسیح کی زبان کے لفظ ہے کہ جب تک تم اپنا خون نہیں دو گے مجھے وفا ہی نظر نہیں آئے گی. جان دینے تک وفادار رہ. اب کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر نہیں ہے, پیش کرو. پیش یا نظر گالی کوئی ہے. اپنی ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو. کون سی قربانی؟ جو خون بھی مانگے اور پسینہ بھی مانگے. تو اپنے خون اور پسینے کی کھائے گا تو مٹی سے لے گا, مٹی میں لوٹ جائے گا. تو آؤ نمکین ہونا ہے تو اپنا خون پسینہ مسیح کے جلال کے لیے بہاؤ. پہلی بات خدا نے کہا کہ جو نظر کی قربانی ہے اس کے ساتھ کیا ہو؟ نمک ملا ہوا ہو اس میں. اور نمک خدا مانگتا ہے. اس بدن میں نمک, اس کے اندر خون جو ہے نکالے اسے. پہلی بات کہ نمک قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا تاکہ قربانی ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ نمک جو ہے یہ ایک کمٹمنٹ ہے. نمک ایک عہد ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جو خودی بکرے کو ایک طرف سے اٹھاتے اور دوسری طرف لے جاتے اور کہتے کہ اگر میں اس عہد کو توڑوں گا تو خدا مجھے ایسے ہی چیر ڈالے گا. خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا اور پھر خدا نے داؤد کے ساتھ نمک کے ساتھ عہد کیا کہ میں تیرے گھر کے اندر سے بادشاہت کو کبھی موقوف نہ کروں گا. اگر اس نے یہ عہد نمک سے باندھا ہے تو آج ہم یہ کہتے ہیں, مقدس پترس یہ کہتا ہے تم کوئی قوم نہ تھے پر اب ایک قوم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو. یعنی یسوع مسیح بادشاہ جو داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے, اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ اس کے ساتھ بادشاہت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ کا حصہ اور پکڑا خداوند یسوع کے وسیلہ سے بادشاہت کے اندر ہے, اور آپ داؤد کے اصل و نسل کے ساتھ عہد باندھنے کے سبب سے آج بیٹھے ہوئے. دیکھیے یسوع مسیح کہاں سے آیا, نسل یسوع مسیح کی کیا ہے؟ میں ساتھ رہیے بلند آواز سے, یسوع مسیح کی نسل کہاں سے ہے؟ داؤد کی اصل و نسل. اور آپ بائبل میں لکھا ہے میں نے داؤد کی نسل کے ساتھ نمک کا عہد باندھا ہے, یعنی وفا کا عہد باندھا ہے.
मसीह यस्सु में है वो इब्राहिम की नस्ल और वादे का वारिस और दाऊद की असल नस्ल से निकला है। और मसीहियों, आप जो यस्सु पर ईमान लाते हैं दाऊद की नस्ल से बन जाते हैं। हम यस्सु के हवाले से दाऊद की नस्ल है। और खुदा ने अहद किससे बांधा? मेरे साथ और आपके साथ, मेरे साथ और आपके साथ। और खुदा अपने अहद को कभी तोड़ता, हम नमक के अहद से बांधे गए हैं और खुदा इस अहद को तोड़ता नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि अगर हम यीशु मसीह के हैं तो बाइबल में लिखा है कि एक बर्रा उस तरफ और एक इस तरफ उसका हिस्सा, सेंटर से गुजरते गुजरते कहते अगर हम अहद को तोड़ेंगे तो खुदा हमें ऐसे ही। और अब यीशु का ईमान ला के उसका मुनकिर हो जाता है, उसके अहद को तोड़ देता है, खुदा उसे ऐसे फाड़ डालेगा। इतना वक्त नहीं कि मैं आगे जाऊं। आखिरी बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा। अलीशा से क्या कहा गया? मेरे सामने गया। तीसरी बात, अलीशा से क्या कहा गया? कि पानी मेरे सामने पानी। अलीशा से कहा गया कि पानी कड़वा हो गया है, तू क्या कर इसका कुछ कहा। तो अलीशा ने क्या कहा? बुजुर्ग अलीशा ने क्या कहा? एक नया प्याला लाओ और उसके अंदर उसने नमक डाला और फिर पानी के अंदर उस नमक को डाल दिया तो पानी सारा मीठा हो गया। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है वो जो पानी देखे वो पानी उम्मतें हैं, कौमें हैं, कबीले हैं, मसायब हैं, इंसान हैं। सो पानी जो है ये बनीनो इंसान को पेश करता है। और खुदा के खादम के पास लोग आते हैं और आकर कहते हैं पानी कड़वा हो गया है, यानी इंसानों के अंदर कतूरतें आ गई हैं, हसद आ गया है, जुदाई आ गई है, लड़ाई आ गई है, नाचरंग आ गया है, ये फट गए हैं, ये आपस के अंदर एक जगह पर बैठते रहे, इनके अंदर कड़वाहट आ गई है, ये कड़वे बोलते हैं, इनकी रूह के अंदर तलखी, इनकी जुबान के अंदर तलखी, ये को शुनीद करते वक्त कड़वे हैं, एक दूसरे के साथ नफाक डाल के बैठे हैं, झगड़े डाल के बैठे हैं। और मर्दे खुदा से कहा जाता है कि खुदा के कादम पानी कड़वा हो गया है। पानी पहले तो कड़वा नहीं था, कि शुरू से कड़वा था, पहले कड़वा नहीं था तो पानी कहा गया ये पानी अब कड़वा हुआ है, तू क्या कर, तू इसको चंगा कर। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उस कड़वे पानी के अंदर क्या किया गया? एक प्याला मंगवाया गया, उस प्याले के अंदर क्या डाला गया? पानी डाल के, पानी को नम के अंदर मिला के घोल के उस पानी के अंदर डाल दिया गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो पानी मीठा हो गया। इसका मतलब यह है दुनिया सारी की सारी आज गुनाह के सबब से, पति के सबब से, बदकारी के सबब से कड़वी हो चुकी है, तल्ख हो चुकी है। और कड़वी होने के सबब से मर्दे खुदा के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि पानी नमकीन, पानी जो है कड़वा है। तो मर्दे खुदा पानी को लेता है, उसके अंदर नमक डालता है और नमक डाल के पानी के अंदर डाल देता है, यानी पानी से मुराद जो कड़वा हो गया है वो दुनिया है। और जो प्याले के अंदर पानी है जिसके अंदर नमक डाला गया है वो मैं और आप है। ये जो नमक डाला गया है पानी के अंदर, ये बड़े इंसान मसीही लोग, ईमानदार लोग हैं। और इन लोगों को खुदा लेकर कड़वे पानी के अंदर डालता है। ये थोड़ा सा नमक है, एक प्याला भर नमक है जो चश्मे के पानी को ना सिर्फ मीठा करता है बल्कि हमेशा के लिए मीठा कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो। और इस नमक को कड़वे पानी के अंदर डालना है, इस नमक को कड़वे पानी के अंदर डालना है ताकि कड़वा पानी मीठा हो जाए। इस नमक को हमने सोखरी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना है, इस नमक को हमने खुदा के मज़बा पर चढ़ाना है। और इस नमक से खुदा ने हमारे साथ अहद बांधा है और खुदा का अहद हमेशा तक कायम है। मसीहियों, हम दुनिया के नमक हैं, हमारा चाल चलन दुनिया का नमक है।
याद कर सकते हैं, आप एक दुनियावी काम याद कर सकते हैं, बाइबल के अंदर भी इसका तस्वीर आपको मिलेगा। जहाँ कहीं गंदगी होती है, गंदगी को साफ करने के लिए नमक को इस्तेमाल किया जाता है। जब यहाँ कुर्बानी हो रही होती है तो लोग खालों को साफ करने के लिए क्या लगाते हैं? नमक लगाते हैं। तो नमक से बदबू खत्म हो जाती है, नमक से गंदगी खत्म हो जाती है, नमक से रसालत खत्म हो जाती है, नमक से पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है, नमक से बदबू खत्म होके उसकी जगह कोई और चीज़ अच्छी ले लेती है। खुदा ने आपको ज़मीन के अंदर रखा है, खुदा ने इस ज़मीन पर आपको इसलिए रखा है कि जहाँ कड़वाहट हो वहाँ अपने नमक से मिठास पैदा करें। हालांकि देख लीजिए, नमक से चीज़ें नमकीन होती हैं, लेकिन आपके नमक से चीज़ें मिठास पाती, वो भी नमकीन हो जाएगी। और बाइबल मुक़द्दस में वो वादा यीशु मसीह ने जो किया, मेरे साथ लूका रसूल की इंजील, आखिरी हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका रसूल की इंजील उसका 14वां बाब, लूका रसूल की इंजील 14वां बाब और 34वीं आयत के अंदर लिखा है, नमक अच्छा तो है, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा। इस्राइल के अंदर रोम की हुकूमत का कब्जा था। रोम की हुकूमत नमक का बकसरत इस्तेमाल करती थी। उस ज़माने के अंदर बहुत से जो सीरियस यहूदी थे, फंडामेंटलिस्ट यहूदी जो थे, वो रूमियों के नम के अंदर रेत मिला देते थे, जिससे उसका मज़ा खत्म हो जाता था और आपको खाद के काम का भी नहीं रहता था और खाने के काम का भी नहीं रहता था। यीशु मसीह ने कहा, अगर नमक का मज़ा जाता है, अगर नमक के अंदर रेत मिला दी जाए, नमक खत्म हो जाता है, उसका मज़ा खत्म हो जाता है, उसका जायका खत्म हो जाता है। वो खेतों के लिए भी कारआमद नहीं रहता और ना ही वो खाने के लिए कारआमद रहता है। यीशु मसीह कहता है, नमक को प्योर रखिए, इसके अंदर मिलावट ना कीजिए। अगर नमक का मज़ा जाता रहा तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देंगे, जिसके काम हो वो सुन ले। एक टाइम आएगा, अगर हम अपने नमक को किसी में मिक्स कर देंगे तो हम नमक तो रहेंगे, लेकिन हमारा नशा खत्म हो जाएगा। आइए नमक को रेत के अंदर ना मिलाएं, नमक को पानी के अंदर मिलाएं, ताकि कड़वाहट खत्म हो और दुनिया के अंदर यीशु मसीह का जलाल आए हो। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे।